Hello students, I hope you all are fine. We are reading lesson 1, the last lesson. The last lesson is about a schoolboy French who was not a brilliant schoolboy. He was very late that morning for school and was in a great fear of being scolded by his teacher M. Hamel because he would question them on participle. For a moment he thought of spending the day out of doors, but still he continued to go there. He continued on the path to school because he had the power to resist. He did so. The story is set in the background of Franco-Prussian War. France was losing the battle and two of its districts passed into Prussian hands. This school was in Alsace. Alsace was also in those two districts which was handed over to Prussia. So the school is in Alsace. French was running towards the school. Suddenly then a blacksmith Vector stopped him by saying that no need to hurry. He thought that he was making fun of him, and when French reached there to school out in the garden, he was very surprised because usually when the school began there was a great sound of lessons repeated together, teacher's ruler tapping on the table, and opening and closing of desk. And daily he would come late to school and enter into the class without being noticed because he depended upon the commotion, the confusion I told you yesterday, confusion that nobody would see him and he would enter quietly in the class. But that day everything was as quiet as Sunday morning. Sunday morning means very quiet, bilkul shanti, bilkul chup. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. विंडो से देखा फ्रेंच ने अंदर. क्या देखता है वो? He saw his classmates already in their places. Today, nobody was running here and there. They were already sitting. M. Hamel was walking up and down. क्लास का चक्कर ऐसे लगा रहे थे. And his terrible iron ruler. Remember this word. Terrible iron ruler. Terrible, भयंकर, बुरा, डरावना. आयरन रूलर, स्टील स्केल आपने भी देखा होगा, आयरन स्केल. अब वो जो आयरन रूलर था उससे फ्रेंच कहता है टेरिबल, भयंकर है. वो हमेशा अपने साथ रखते थे उस आयरन रूलर को क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, हमें इससे पता लग रहा है. एंड ही वॉज हैविंग दैट आयरन रूलर टुडे ऑल्सो. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब आज तो विंडो से कूद कर नहीं आ सकता बिकॉज एवरीबडी वुड नोटिस. तो आज क्या किया? सो ही हैड टू एंटर इनटू थ्रू द डोर. You can imagine how I blushed and how frightened he was. He was really frightened that M. Hamel will rebuke him, will scold him. But nothing happened. ऐसा नहीं हुआ. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." So what did M. Hamel say? This is a very important lesson. Each and every line forms a question for 2 marks. M. Hamel saw French and said, "Go to your place quickly." जल्दी जाए. लिटिल फ्रेंच, अपनी सीट पर बैठो. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. आज तो हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे. हैरान हो गया फ्रेंच सुनकर. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. कल पढ़ा था हमने ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क कि ये ऐसे बेंच थे, ऐसे डेस्क बेंच थे, चेयर की तरह थे जो अटैच थे दोनों. वो ओपन करके अंदर एंटर करना होता. तो अब फ्रेंच ने क्या किया? उसके ऊपर से ही जंप किया, बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fear, did I see. अब
इसमें अनयूजुअल थिंग्स क्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, यहाँ सब चीजें यहाँ एक्सप्लेन की जा रही हैं. वट वॉज द टीचर वियरिंग ऑन दैट स्पेशल डे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है. He said that his teacher was wearing his beautiful green coat. अब थोड़ा सा मन में से डर कम हुआ क्योंकि डांट नहीं लगी थी, तो देखा कि टीचर ने अपना एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, फॉर्मल ड्रेस, ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. फ्रिल्ड यानी वो फ्रिल्स लगी हुई होती हैं, बटन जो लाइन होती है उसके दोनों तरफ. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एक छोटी सिल्क कैप भी पहनी हुई थी और सब वो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, धागे से कढ़ाई का काम करना. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. अब उस ड्रेस के बारे में स्पेशल क्या था कि वो इसे तब पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन हो स्कूल में या प्राइज डेज हो, यानी स्पेशल डेज पर ही वो पहनते थे. आज क्या स्पेशल था? Besides, the whole school seemed so strange and solemn. आज सारा स्कूल बहुत अजीब सा और solemn, strange and solemn, solemn मतलब serious, बहुत ही गंभीर, serious लग रहा था. But the thing that surprised me most, what surprised French the most? Question: what surprised French the most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. क्लास में जो लास्ट बेंचेस थे जो हमेशा खाली होते थे, आज वहां उन बेंचेस पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे. विलेज पीपल वर सिटिंग देयर. स्टूडेंट्स की तरह कौन कौन आया हुआ था? ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. नाम है, देखो प्रॉपर नाउन है ये, अब आप देख सकते हैं. उन्होंने अपनी हैट पहनी हुई थी. फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी कई लोग. तो बहुत से लोग आज विलेजर्स वहां बैठे हुए थे. क्या करने आए थे वो स्कूल में? एवरीबडी लुक्ड सैड एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. ओल्ड होजर जो थे उन्होंने तो अपने साथ एक वो प्राइमर भी लेकर आए थे. प्राइमर यानी नर्सरी जो बुक होती है ना, प्राइमर बुक बोलते हैं हम उसको, नर्सरी क्लास के लिए जो बुक होती है, तो वैसी वो बुक लेकर आए हुए थे. थम्ड एट द एजेस, और वो बुक के किनारे पर जो था ना, थम्ड होता है, जैसे कोई पुरानी बुक होती है, बार बार हम पेज पर लटते हैं तो वो ऐसे मुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड थम्ड. ही हैड हिज ऑन हिज नीज, बुक रखी हुई थी अपने घुटनों पर और उस पर अपने स्पेक्टिकल्स भी रखे हुए थे. While I was wondering about it all, Hamel mounted his chair. अब जैसे ही वो कहते हैं कि मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि Hamel उठे. In the same grave, gentle tone which he had used to me said. तो जिस टोन में, जिस प्यार से उन्होंने पहले फ्रेंच को कहा था कि लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, उसी टोन में देखो, बड़े प्यार से जेंटल बोल रहे हैं बट ग्रेव है यानी सीरियस टोन, बड़े गंभीरता से क्या कहते हैं? माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन आई शेल गिव यू. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेसन की. क्या कहा? कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं. वाई? बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. जब भी कहीं कोई देश दूसरे पर हमला करता है, कब्जा करता है, सबसे पहले वो उन्हें अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं, क्योंकि हम जिस भाषा को ज्यादा बोलते हैं हम उसी की संस्कृति को धीरे धीरे अपना लेते हैं. अब उन्होंने क्या कहा कि आज लास्ट लेसन है और ऑर्डर आ चुका है लॉरेन और अल्सेश के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. जर्मनी ने अपनी भाषा लगा दी. द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो. न्यू मास्टर जो जर्मन लैंग्वेज टीचर है वो कल आ जाएंगे. सो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव.
तो ये है तुम्हारा आज आखिरी फ्रेंच लेसन, और मैं ये चाहता हूं कि आप सब बड़े ध्यान से इसे पढ़ें. What a thunderclap these words were to me. Another question. What words of M. Hamel were like thunderclap to French? ये words. कौन से words? That the order from Berlin had come to teach only German from the next day. This was the last French lesson. तो इन शब्दों ने मुझ पर मानो वज्रपात किया. थंडरक्लैप होता वज्रपात. Oh the wretches, bad people. That was what they had put up at the town hall. और अब वो सब चीजें कोरिलेट कर लेता है तुरंत कि अच्छा यही नोटिस था टाउन हॉल में और इसीलिए इतनी भीड़ थी. दैट इज वाई वेक्टर वॉज आस्किंग हिम नॉट टू रन सो फास्ट एज देयर वॉज मच टाइम. दिस इज वाई द विलेजर्स had come there to attend the last French lesson. Is this why M. Hamel was wearing his special clothes? So this was the last French lesson. From next day onwards, they were going to read German only. So read your lesson up to here. We'll continue tomorrow. Thank you.